वेलकम फ्रेंड्स। वेलफेयर। वेल बेटा, लास्ट क्लास हमने ख़त्म किया था टॉपिक कॉल्ड एक्सचेंज। तो एक्सचेंज के एक्सटेंशन के तौर पर हम वेलफेयर को पढ़ते हैं। आइए शुरू करें। द कॉन्सेप्ट ऑफ परेटो एफिशिएंसी स्टेट्स नथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर अक्रॉस पीपल। तो हमने एक्सचेंज में परेटो एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा, बट वो वेलफेयर के बारे में उसमें हमें कुछ पता नहीं चलता। In this chapter, we shall consider different mechanisms of adding together individual consumer preferences to construct social preference. In order to do so, we first introduce the concept of a welfare function. आपको न्यूमेरिकल में मैं 5 टाइप के वेलफेयर फंक्शन सॉल्व करके दूंगा। आइए पहले इसके एक जेनरिक मीनिंग पढ़ लेते हैं। A welfare function provides a mechanism to rank different distributions of utility among consumers. We assume that each consumer is having preferences over the entire allocation of goods among all the consumers. Let X denote a particular allocation representing what every individual gets of every good. Let Y represents a different allocation. Each individual shall now be in a position to state whether he prefers X to Y or Y to X or is indifferent between X and Y. In this way, we shall have preferences of all agents comprising this society. We now aggregate these preferences to define a social preference. Some mechanisms to aggregate individual preferences to obtain social preferences are discussed below. सबसे पहले मेजॉरिटी वोटिंग। बेटा, बहुत सारे दुनिया के देशों में ये एज इलेक्शन में भी यूज़ होता है, बट देन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। Under this method, allocation X is socially preferred over Y when majority of the individual prefer X to Y. This is called majority voting method. A limitation of this method is that it may not generate a transitive social preference ordering. मेरे बच्चों, सेमेस्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने वेल बिहेव प्रेफरेंस का एक सॉलिड अजम्पशन पढ़ा था, ट्रांजिटिविटी। तो आपको वो सोशल वेलफेयर फंक्शन में भी चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट कमिंग अप, देन आप समझ लीजिए आपका जो वेलफेयर फंक्शन है, जस्ट लाइक अ वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस जो यूटिलिटी फंक्शन के लिए होता है, तो यहाँ पर अगर आपके पास ट्रांजिटिविटी नहीं आती तो आपका सोशल वेलफेयर फंक्शन भी बेस्ट नहीं माना जाएगा। आइए इसको समझते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देर आर थ्री पर्सन ए बी एंड सी हु हैव आस्क्ड टू रैंक 3 डिफरेंट एलोकेशंस एक्स वाई जेड, और इनकी रैंकिंग देखो। ए ने कहा आई लाइक एक्स ओवर वाई ओवर जेड, बी ने कहा वाई ओवर जेड ओवर एक्स, सी ने कहा जेड ओवर एक्स ओवर वाई। So it will be noticed that person A and C prefer X to Y, X to Y, X to Y. So majority prefers 2 out of 3 X to Y. तो अगर X और Y में competition हुआ तो X जीत जाएगा। It will be noticed that person A and B prefer Y to Z, Y to Z, Y to Z. तो अगर Y और Z में competition हुआ तो Y जीतेगा। It will be noticed that person B and C prefer Z to X, Z to X, Z to X. तो अगर competition Z to X के बीच में हुआ तो Z जीतेगा। Thus aggregating individual preferences using the mechanism of majority voting shall not work. This is because the social preferences resulting from the majority voting are not transitive, and therefore there is no best alternative from the set of alternatives x, y and z. अब देखो ना आप, x और y की लड़ाई में कौन जीत रहा था? सर x। बिल्कुल। y और z की लड़ाई में सर y, z और x की लड़ाई में सर z। तो आपके पास कोई एक सिंगल ऐसा एलोकेशन नहीं है जो बेस्ट हो। समझ लो, एक्स वाई में एक्स जीत रहा है, वाई जेड में वाई जीत रहा है, जेड एक्स में जेड जीत रहा है। जबकि ट्रांजिटिविटी कहता है इफ एक्स इज प्रेफर्ड ओवर वाई एंड वाई इज प्रेफर्ड ओवर जेड, देन एक्स मस्ट बी प्रेफर्ड ओवर जेड। सो फ्रॉम द सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू कोई ऐसा बेस्ट एलोकेशन नहीं मिल रहा या ट्रांजिटिविटी नहीं मिल रही, इन शॉर्ट। Further, the choice of the society shall depend upon the order in which the vote is taken. Consider the following possibilities. बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Possibility 1 है 3% decides to vote for X versus Y. The allocation that wins this contest shall then compete against Z. At the first level of contest X versus Y, obviously X जीत जाएगा. At the second level of the contest X versus Z, तो Z जीत जाएगा. Therefore the outcome that wins is Z. यानी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। अब possibility 2, the 3% decide to vote first on Z versus X, and the second level of the contest is between Z versus X and Y rather. Z shall win the first level क्योंकि Z और X में Z preferred था. The second level of the contest is between Y and Z, जो कि Y जीतेगा। तो यहाँ पर Y बन गया। तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं मेरा बेटा मेजॉरिटी वोटिंग के अंदर। एक तो ट्रांजिटिविटी नहीं मिल रही, दूसरा मैनिपुलेशन क्या है? बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर ऑर्डर। Possibilities
1 and 2 show that the overall outcome depends upon the order in which the alternatives are presented to the agent. This implies that majority voting can be manipulated by changing the order in which things are voted so as to yield the desired outcome. एक और तरीका है मेरे बच्चों which says rank order voting, इसको बोडा काउंट भी कहते हैं. In this method, each person ranks the good according to his preferences and also assigns a number that indicates its rank. The individual may assign 1 for best, 2 for second best, 3 for third best and so on. So यानी अगर कम वो नंबर दे रहा है तो यानी वो ज़्यादा बेटर है alternative. We obtain the results from all person, then we add the scores for each alternative scores. All people. This gives us the aggregate score for each alternative. The outcome with the lowest aggregate scale shall be the socially preferred outcome. This is because 1 is for best, 2 is for second best and so on. Rank ordering method has a major limitation. The method again can be manipulated by using new alternatives. अब मेरे बच्चों वोटिंग में क्या करते हैं ज़्यादातर जब भी जहाँ पर भी मल्टी पार्टी सिस्टम है लाइक इंडिया, यहाँ पे बहुत सारी रीजनल पार्टीज आ जाती हैं या बहुत सारे लोकल इंडिपेंडेंट वो आ जाते हैं यू ना पार्टिसिपेंट. वो क्या कर देते हैं, वो इस रैंक ऑर्डर को मैनिपुलेट करते हैं. कैसे, मैं अभी आपको प्रूफ करता हूँ. Initially there are two alternatives x and y available to two agents A and B. तो A ने कहा I like x over y, B ने कहा I like y over x. तो A ने जो बोर्डर काउंट दिया वो दिया 1 and 2, इसने दिया 1 and 2. टोटल ऑफ x 1 और 2 3, इसका 2 और 1 3. So in this case there would be a tie with each alternative x and y getting an aggregate rank of 3. A से x को मिला 1, B से x को मिला 2, तो 1 plus 2 3. A से y को मिला 2, B से मिला 1, सो 2 plus 1 3, दोनों का टाई हो गया. अब देखिए ये जो स्पॉइलर आएंगे वो क्या करते हैं. नाउ वी नाउ इंट्रोड्यूस अनदर ऑल्टरनेटिव Z. तो सपोज पहले कांग्रेस और बीजेपी की ही हो रही थी पार्टी में लड़ाई, तो आपस में इलेक्शन हो रहा था तो टाई चल रहा था फॉर एग्जांपल. तभी एक रीजनल पार्टी आ गई Z, जिसके जीतने का कोई चांस नहीं है, सिर्फ वोट काटने के लिए आई है वो. देखिए सो ए ने कहा एक्स वाई जेड, तो ए ने एक्स को 1 रैंक दिया, बी ने कहा वाई जेड एक्स, तो बी ने एक्स को 3rd रैंक दिया. 1 + 3 एक्स के पॉइंट हो गए 4. ए ने वाई को सेकंड रैंक दिया 2 पॉइंट, और वाई को बी ने 1st रैंक दिया तो 1. 2 + 1 कितना है 3, भाई साहब वाई जीत गया. So person A has given a score of 1 to x, 2 to y, 3 to z. Person B has given a score of 1 to y, 2 to z and 3 to x. So x now has an aggregate of score of 4, y has an aggregate score of 3, thus y shall be preferred to x under the rank ordering method. So thus method A and method B have shown कि कोई perfect way नहीं है to aggregate individual preferences to obtain one social preference outcome. Arrow's impossibility theorem. Well, Kenneth Arrow, the American economist and the Nobel Prize winner in 1972, has stated that there is no ideal way to aggregate individual preferences into social preferences. This is called the Arrow's impossibilities theorem. Well, there are 3 plausible and desirable criteria which are to be satisfied to aggregate individual preferences to make our social preference. तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो ही एरो कहता है कि आपके पास एक आइडियल सोशल वेलफेयर फंक्शन आएगा. लेकिन साथ में एरो ऐड करते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि तीनों सिचुएशंस हों, कोई ना कोई वायलेट करेगा. तो सबसे पहले क्राइटेरियाज देख लेते हैं. First criteria, given that individual preferences are complete, reflexive and transitive, वही well behaved preference, SEM3, microeconomics, Hall variant. The social decision mechanism should also result in social preferences that are also complete, reflexive and transitive. Second, if all individuals prefer alternative x to y, then social preferences must also rank x ahead of y. Third criteria, the preferences between alternative x and y should depend only on how people rank x versus y and not on how they rank other alternative. जो हमने पिछले मेथड में देखा था कि z के इंट्रोड्यूस होने से क्या हुआ था. If we aggregate individual preferences to obtain social preferences, then any one of the above criteria described in Arrow's impossibility theorem shall be violated. Further, if a social decision mechanism does satisfy all the criteria, then it will only be under dictatorship. तो हम लोग गाली देते हैं डिक्टेटरशिप इज बैड, डिक्टेटरशिप इज दिस, डिक्टेटरशिप इज दैट, बट एज पर एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम अगर आपको एक बेस्ट सोशल वेलफेयर फंक्शन चाहिए जिसमें तीनों क्राइटेरियाज फुलफिल हों, दैट कैन हैपन अंडर डिक्टेटरशिप ओनली. According to Arrow, in simple words, the society shall not be able to make up its collective mind as to what it wants. अब है मेरे बेटे सोशल वेलफेयर फंक्शंस. राजे मैं अभी सिर्फ थ्योरी ऊपर से इसलिए बता रहा हूँ कि रीडिंग्स पढ़ो आपको दिक्कत ना हो, लेकिन ये अच्छे से समझ आएंगे अगले वीडियो में जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके दूंगा. बेसिकली न्यूमेरिकल्स के लिए ही होता है.
So classical, utilitarian or Benthamite welfare function. So Jeremy Bentham was the leading philosopher of the utilitarian school of thought. According to him, the sole stimulus to human endeavor was self-interest and the pursuit of one's happiness. This school of thought considered the highest good to be the greatest happiness for the greatest number. Suppose person I prefers x to y if and only if utility of x is more than utility of y. So utility from x allocation for person I is greater than utility from y allocation. N is the number of individual in the society. In order to obtain social preference from individual preference, हम सबको add-ons कर देंगे और individual utility and use this result as describing social utility. In this case, we can say that allocation x is socially preferred to allocation y when the summation of utility from x is greater than the summation of utility from y. वेटेड सम ऑफ यूटिलिटी वेलफेयर फंक्शन, इसमें हम रिलेटिव इंपॉर्टेंस दे देंगे बच्चों. अब आप स्टैट्स में पढ़ते ही हैं वेटेड एवरेज मेथड. तो बेटा वेटेड एवरेज में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो. मैं 2 एग्जांपल देता हूँ. एक कंपनी का पिछले साल प्रॉफिट था, उससे पिछले साल लॉस था. तो ऑब्वियसली वाइल इन्वेस्टिंग आप दोनों चीज़ों को देखोगे, लेकिन आई थिंक जो पिछले साल की उसकी प्रॉफिट था उसको आप ज़्यादा वेट देंगे. इसी प्रकार अगर आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अब हम सैटरडे संडे छुट्टी रखा करेंगे और नहीं, और बाकी या तो जनता कहती है कि हम सैटरडे छुट्टी रखेंगे, संडे छुट्टी रखेंगे 2 दिन, आप बताओ किसकी बात में ज़्यादा वेट है, किसकी बात लगता है कि हाँ अप्लाई होने के ज़्यादा चांस है. सब प्राइम मिनिस्टर, तो ऑब्वियसली फिर वेट ज़्यादा होगा. सो दिस टाइप ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन, इसके अंदर हम वेट्स दे देते हैं वेयर A1, A2 एंड A3 जो यहाँ पे लिखा है इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस और वेट दैट ईच एजेंट यूटिलिटी हैज़ टू द ओवरऑल सोशल वेलफेयर. सपोज 3 लोग मैंने लिए, एक है प्राइम मिनिस्टर, एक है फाइनेंस मिनिस्टर और एक है नॉर्मल पीपल. तीनों से सोच ली उनकी एक ही क्या चाहते हैं सोसाइटी में. तो आप बताइए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको माना जाएगा? प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि उनकी बात मानी जाने के चांसेस ज़्यादा है. Rawlsian को min function भी कहते हैं गाइस. John Rawls, an American political theorist at Harvard, stated that social welfare should be defined in terms of welfare of the least well-off agent in the society, so a so-called minimum approach. कि यहाँ पे इस अप्रोच में ना हमारा ध्यान होता है कि जो सबसे गरीब आदमी है सोसाइटी में उसको क्या नीड है, उसके हिसाब से बने चीज़ें. So the social welfare of an allocation does depend upon the welfare of the worst of agent, that is the person with the minimum utility. So the welfare of the rest of the population should only be treated as a tie-breaking rule for ranking different outcomes that were irrelevant to the worst of agent. इसी प्रकार आता है नाइट जीन, इसको मैक्स फंक्शन भी कहते हैं. दिस वेलफेयर फंक्शन स्टेट दैट द वैल्यू ऑफ द एलोकेशन डिपेंड ओनली ऑन द वेलफेयर ऑफ द बेस्ट ऑफ एजेंट. तो मिन फंक्शन में जिसकी सबसे कम यूटिलिटी होती है उसको देखना है, मैक्स फंक्शन में जिसकी सबसे ज़्यादा यूटिलिटी है उसको देखना है. न्यूमेरिकली मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा अगले वीडियो में. इंडिविजुअलिस्टिक वेलफेयर फंक्शन मेरा बच्चा, इसको बर्गिसन और सैमुअल्सन भी फंक्शन भी कहते हैं. इसके अंदर ना आप किसी भी टाइप का एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस ले लेते हैं. इट कुड बी अ कॉब डॉगलस, इट कुड बी क्वाज़ाई लीनियर, एंड देन उसके हिसाब से सोशल वेलफेयर फंक्शन बनाते हैं. अगेन न्यूमेरिकल्स विल थ्रो सम लाइट एट इट. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज कॉल्ड अ फेयर एलोकेशंस. बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है. The welfare function approach is very general way to describe social welfare, but because it is so general, it can be used to summarize the properties of many kinds of moral judgments. On the other hand, it is not much use in deciding what kinds of ethical judgment might be reasonable ones. Suppose that you were given some goods to divide fairly among n equally deserving people. How would you do it? It is probably safe to say that in this problem, most people would divide the goods equally among n agents, given that they are by hypothesis equally deserving. What else could you do? Example देता हूँ. This is I can do. सपोज मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं A, B और C. मेरे पास 3 चॉकलेट्स हैं और तीनों अच्छे बच्चे हैं, तो मैंने तीनों को एक एक चॉकलेट्स दे दी. Look fine? Yes. The idea of equal division shows symmetric division, that is each agent has the same bundle of good. A के पास भी एक चॉकलेट, B के पास भी एक चॉकलेट, C के पास भी एक चॉकलेट, और मैंने 3 चॉकलेट्स दी, तीनों में बांट दी. Unfortunately, an equal division will not necessarily be Pareto. If agents have different tastes and preferences, they will generally desire to trade away from equal division. कहते हैं आपने तो अपनी तरफ से अच्छा सोचा कि इक्वल बांट दिया, पर जरूरी नहीं है वो परेटो. परेटो क्या होता है? जब आपको बेस्ट सेटिस्फैक्शन मिल रही हो. तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सपोज ए को चॉकलेट बहुत पसंद है, बी को भी चॉकलेट बहुत पसंद है, सी हेट्स चॉकलेट, उसको चिप्स बहुत पसंद है. तो डोंट यू थिंक सी जो है ए और बी के साथ ट्रेड करना चाहेगा, चाहे ए से चाहे बी से, कि भाई तुम मेरी चॉकलेट ले लो, मैं तो खाता नहीं, मेरे को बदले में तुम अगर तुम्हारे पास चिप्स हैं तो दे दो. ठीक है. यानी और ऑब्वियसली ए और बी को तो चॉकलेट पसंद है, दे विल ऑब्वियसली वांट कि और चॉकलेट मिल जाए, बदले में दे देंगे चिप्स वगैरह.
सो लेट सपोज दैट द ट्रेड टेक प्लेस एंड इट मूव्स टू परेटो, और फिर खुश हो जाएंगे, परेटो बना लेंगे. सो द क्वेश्चन अराइजेस, इज दिस परेटो एफिशिएंट एलोकेशन स्टिल फेयर? डज ट्रेड फ्रॉम इक्वल डिवीजन मेक परेटो फेयर? नो, नॉट नेसेसरली. आइए सीखते हैं. So we have three people A, B and C. A and B have same taste, but C has different taste. जो मैंने example दिया अभी. We start from an equal division and suppose that A and C got together and trade, then they will be better off. तो B को ना इन्होंने बताया नहीं, A चुपचाप C के पास गया, कहता है ओ भाई तू मेरे को चॉकलेट दे दे. तो C ने कहा अच्छा, तो तू बदले में क्या देगा? कहता है मेरे से चिप्स का पैकेट ले ले. दोनों खुश. A के पास क्या आ गई है? 2 चॉकलेट. C के पास चॉकलेट तो पसंद नहीं थी, उसे आ गया चिप्स. अब भाई साहब B को पता चला बाद में, बी बेचारा अब चिढ़ रहा है, जल रहा है. ही एनवीज नाउ ए कि यार देखो इसको तो ट्रेड का चांस मिल गया. सो नाउ बी हु डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड विद सी विल एनवाई ए, दैट इज ही वुड प्रेफर एज बंडल टू हिज ओन. बी सोच रहा होगा यार काश मेरे को ये चांस मिल जाता, आई वुड हैव बीन सो हैप्पी. Even though A and B started with the same allocation, A was luckier in her trading and this destroyed the symmetry of the original allocation. Is there any way to set an allocation or get an allocation that is both Pareto and equitable? Yes sir. ये सब तो बाद में, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. अब पता है बेस्ट क्या होता? बेस्ट ये होता कि ये ना कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम कर लेते, परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन की तरह कर लेते. कैसे? सी खुला होके कह देता कि मेरे को चॉकलेट पसंद नहीं है तुम में से कोई ऐसा जो मेरे को चॉकलेट ले ले मेरे से और बदले में चिप्स दे दे. आप कहोगे इससे क्या फ़ायदा होता? भाई साहब इससे ना सी को बेस्ट वैल्यू मिलती. सर कैसे? अभी तो सी और ए के बीच में ट्रेड हुआ था. अगर सी ओपन ट्रेड कर देता, ए और बी दोनों आ जाते, तो बिडिंग स्टार्ट हो जाती. ए कहता मेरे से 1 चिप्स का पैकेट ले ले, बी कहता मेरे से 2 ले ले, ए कहता मेरे से 3 ले ले, बी कहता मेरे से 4 ले ले, डिपेंडिंग अपॉन उनको कितनी नीड है, कितना क्या यूटिलिटी दे रही है चॉकलेट उनको. जैसे ही ए कहता 5 ले ले, बी कहता भाई तू ले ले, मैं नहीं देता 5 चिप्स के पैकेट. अब आप बताओ सी को उसी एक चॉकलेट के लिए कितने चिप्स मिले? चिप्स पैकेट 5. ठीक है, अब इसी को इसके थ्रू सिखाता हूँ. We say an allocation is equitable if no agent prefers any other agent bundle of goods to his or her own. If some agent I does prefer some other agent J's bundle of good, we say that I and Y is J. Finally, if an allocation is both equitable and Pareto, we say that it's a fair allocation. Consider figure to determine whether any allocation is equitable or not. Just look at the allocation that results if the two agents swap bundle. अगर ये swap करते हैं और अपने ICs के नीचे आ जाते हैं तो वो best है ही नहीं. So if this swapped allocation lies below each agent's IC through the original allocation, then the original allocation is an equitable allocation. तो ये वाला नहीं है बढ़िया, originally best है. Note that note also that the allocation in figure is also Pareto efficient, क्योंकि वो टेंजेंसी की कंडीशन आ रही है बेटा. So it is not only equitable but also efficient. By our definition, it is a fair allocation. So is this kind of allocation a fluke or will fair allocation typically exist? बिल्कुल होते हैं. जो मैंने एग्जांपल दिया वो देखो. It turns out that fair allocation will generally exist. Suppose we had an equal division allocation and consider trading to a Pareto efficient allocation. Now suppose there is a competitive market. This will move us to a new allocation where each agent is choosing the best bundle of good he or she can afford at equilibrium price P1 P2, and we know it's Pareto. वो फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम पढ़ा था ना पीछे एक्सचेंज में, all competitive are Pareto. But is it still equitable? Suppose not. Suppose A and Y C B. This means that A prefers what B has. तो ऑब्वियसली A को अपने X एलोकेशन से कम सेटिस्फैक्शन मिल रही है देन B के एलोकेशन से. बट इफ A persons B bundle, A prefers B's bundle to her own, and if her own bundle is the best that she can afford at P1 P2, and B's bundle being better means that B's bundle must cost more than A. तो ये अफोर्ड कैसे कर सकता है बेटा? अफोर्ड ही नहीं कर सकता. But this is the contradiction, for by hypothesis A and B started with exactly the same bundle since they started from an equal division. If A can't afford B, then B also can't afford A. Thus, a competitive equilibrium from equal division must be a fair allocation. अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आप बड़ी तेज पढ़ाते हो. बेटा यहाँ पे ऑनलाइन चल रहा है, तू वीडियो कर रहा है, तू तेज तो देख रहा है, लेकिन सोच कौन माई का लाल ऑल ओवर वर्ल्ड तेरे को ये समझा पाएगा, तेरे को ये प्रूव कर पाएगा कि 20 मिनट के अंदर पूरा वेलफेयर ख़त्म. तो प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं ना हर चीज़ के. थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि तू इंटेलिजेंट आदमी है यार, तुम बच्चे बहुत प्यारे हो, यूं पकड़ते हो चीज़ों को. और दूसरी बात, ये नंबर है ना, ये बड़ा काम का है. 9811439887. व्हाट्सएप करके तू डाउट्स ले लेना, कौन मना करता है तेरे को.
लेकिन 20 मिनट के अंदर वेलफेयर खत्म करना है, इसलिए थोड़ा तेज रखते हैं मेरा बेटा। सर 20 मिनट के अंदर ये क्यों करना है? ताकि तेरे ऊपर प्रेशर ना आए, साइकोलॉजिकली तेरे को लगे अरे 20 मिनट का चैप्टर है यार। चलो लास्ट टॉपिक है वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। ये सिर्फ थ्योरी है, मैं न्यूमेरिकल के थ्रू इसको सिखाऊंगा अगले वीडियो में। वी कैन नाउ शो द विद द हेल्प ऑफ फिगर वेयर वी हैव अ यूटिलिटी पॉसिबिलिटी सेट और अ कर्व। इसको यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, मैं न्यूमेरिकली सिखाऊंगा। बाउंड्री ऑफ दिस इज द सेट ऑफ यूटिलिटी लेवल एसोसिएटेड विद परेटो पॉइंट्स। इफ एन एलोकेशन इज ऑन दिस बाउंड्री, तो फिर आपको पता है कि इनमें से किसी भी पॉइंट पर आपका परेटो आएगा। तो ये हमने आईसीस बनाए, इसको यहाँ पे आइसो वेलफेयर कर्व्स कहते हैं। ये कॉन्वेक्स हैं, ये नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट आईसी हैं। सो द इंडिफरेंस कर्व इन द डायग्राम आर कॉल्ड आइसो वेलफेयर कर्व सिंस दे डिपिक्ट दोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलिटी दैट हैव कांस्टेंट वेलफेयर। As usual, the optimal point is characterized by tangency. In this case, the maximum welfare point is Pareto efficient point. ठीक है, चिंता ना कर, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये तेरे को भी न्यूमेरिकल सिखाऊंगा अगले वीडियो में, यूँ मज़ा आ जाएगा तेरे को। ठीक है, सो एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न, सर वेलफेयर इज ओवर।